हम एक गेम खेलते हैं. Are you interested in playing a game? Okay. Okay. All right. So I'm going to introduce something to your audience, okay? And these are called Zener cards. So I'm going to show it on the screen. So this is a red cross, a black square, a blue wave, a yellow circle, and a green star. Now, काफ़ी लोग अभी ये देखेंगे और बोलेंगे कि यार ये क्या दिखा दिया हमें. So basically, I'm just going to give you narrate a little bit of the story behind what this is. So these are called Zener cards, and they have been used in the military in order to enhance psychic abilities. So psychic abilities basically, मतलब we have spoken about remote viewing, and we have spoken about how the US, the USSR, all these big, सब यूज करते हैं remote सब viewing. use करते हैं, and they have come to a point where, they have practiced and they have opened up how to, become more psychic or be more telepathic. तो ये telepathic exercise है जहाँ पे there is a tasker and a the taskee, okay? So the tasker would choose one of the cards. तो ये उसमें से कोई भी एक card the tasker is going to choose, and in the mind itself telepathically it's going to give it to the taskee. Okay, और taskee को जरा नहीं पता होगा कि कौन सा choose किया है. So what will happen is we will kind of do this. The person is kept put in a meditative state और guide किया जाता है meditative state. And एक मतलब exercises में this is one of the ways how you enhance your psychic abilities. So maybe what we'll do today is let me start with giving you become the taskee and I'll become the tasker. And I think your audience will love, so your audience can also join in. Okay. So what we'll do is we will make, so I'm just going to give the instructions first. So we'll make you close your eyes first. Don't do it now. I'll tell you in a bit. Uske baad, I'm going to choose a card. Okay. ये मैं audience को भी अभी नहीं दिखाऊंगी because audience भी play कर रही है हमारे साथ. Okay. उसके बाद I'm going to put you in a meditative state. All right. So I'll make you go very calm and complete to a state, हम उसे बोलते हैं void, go in a void state, okay? जहाँ पे neutrality है and you'll pick up information from there. वहाँ से telepathically I'll give you the information कि ये क्या है without sharing it loudly or anything. And then you pick the information, and then whatever comes straight to you, you will tell it loud कि क्या मिला है. And I think the audience can also say it. ठीक है? उसके बाद मैं रिवील करूंगी कि मैंने कौन सी कार्ड चूज की थी. ठीक है? So Right. can we do that? Right. इसको एक चीज और मतलब जितना मुझे समझ आया कि हम अपनी साइकिक एबिलिटीज को हर कोई आज अपनी साइकिक एबिलिटीज टेस्ट कर सकता Test है. करेंगे. सो हम बेसिकली रिमोट व्यूइंग जो पिछली बार, क्योंकि मैंने क्या किया आज के एपिसोड से पहले पुराने पॉडकास्ट देख लिए, बिकॉज आप टीचर हो, आप मुझे डांटोगे कि पता क्यों नहीं है. सो मैं पहले देख के आया कि हमने रिमोट व्यूइंग के बारे में पहले डिस्कस किया था, एंड यू टोल्ड दैट आप खुद CBI और एजेंसीज के साथ भी आप काम कर चुके हैं. रिमोट व्यूइंग होता है कि यहीं पर रहते हुए हम कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं. और आपने मेरे को ये भी समझाया था कि आप उसको फील भी कर सकते हैं वहाँ जाकर. फील सोल कर रही है. फील आपकी, यस यू कैन से इट कि आप सोल कर रही है, बट हमारे जैसे बॉडीज हैं. ठीक है? हमारा ये ग्रॉस बॉडी है, हमारा एक कॉजल बॉडी भी होता है, हमारा एक स्पिरिचुअल बॉडी, हमारा एक एस्ट्रल बॉडी भी होता है. तो हम एस्ट्रली भी मूव कर सकते हैं. वी गो इन टू दैट स्टेट. तो आप अगर फॉर अ लेमैन्स टर्म हम बोल सकते हैं कि द सोल इज मूविंग, बिकॉज द सोल इज द वन दैट इज कनेक्टिंग टू थिंग्स, बट मूव नहीं कर रही है. We are consciously moving our consciousness into that state and receiving information through our extra sensory perception. जो conscious वो non-local होता है, यानी local is in the body, non-local which is not in the body, that is outside. Okay, so we are connecting in that sense. कॉन्शियसनेस फील कैसे करता है? जिस तरह से, and I think it's a good question that you've asked over here because it'll help your audience to understand. So let's put it this way. जब आप meditate करते हो, I'm sure a lot of people meditate in this channel who watches this channel.
आपको ना कभी कभार ऐसे जिटर्स फील होते हैं, ट्रिम्बल्स फील होते हैं, कभी कभार होता है ना कि हम कहीं पे वी हैव गॉन समवेयर एंड हमको उसकी वहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं लग रही है, या से हम बैठे हैं एंड सडनली हमको एक गूज बम्प से फीलिंग आ गई, ठीक है? तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? ये आपकी बॉडी पिक नहीं कर रही है, आपकी कॉन्शियस स्टेट्स पहले पिक कर रही है, Interesting. ओके? एंड तो यानी कि however whatever you see कि मेरी बॉडी अभी सिलुएट ऐसी दिख रही है, बट वी आर मच मोर बिगर देन दिस, यानी हम इससे भी ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं. सो वट एवर इज कमिंग थ्रू दैट इंफॉर्मेशन is how we picking information. Body तो बाद में आती है, पहले तो energetically we pick things up, then comes through the body. So energetic body के through हम information pick कर रहे हैं. So that's how it is. Got it. So अब हम इस एक्सरसाइज पे चलते हैं. इस Okay. एक्सरसाइज में बेसिकली आप हम सबको मेडिटेट करवाएंगे और उसके बाद आप अपनी साइकिक एबिलिटी से हमारे माइंड में वो कार्ड डाल देंगे एंड जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है आप मतलब हम बताएंगे कि मैं क्या सोच रहा था और फिर आप ही बताएंगे कि आपने कौन सा कार्ड पिक Choose किया था. किया. इसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाने के लिए जो कार्ड आप बोलने वाले हैं, क्या आपको पता है वो कार्ड के बारे में भी? अभी तो मैंने सोचा नहीं इस बारे में, but I'll pick at the time. राइट. सो कैन वी डू दिस? मेरे बोलने से पहले आप उस कार्ड को मे बी कहीं पे लिख दें या आप उस कार्ड को कहीं पे शो कर दें, ऐसा हो सकता है सो दैट हम उसको मैच कर सकें कि कौन सा कब हुआ था. या मतलब मैं ये तो होगा ही. सो बेसिकली आपको वो मैं चूज करने के पहले आई विल नॉट शो, बट आई विल लीव इट ऑन वन साइड. डन. ठीक है ना? Interesting. सो विल डू दैट. Let's do ऑलराइट. it. ओके. सो फॉर द ऑडियंस मे बी आपके स्क्रीन पे इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज अ माउथफुल टू रिमेंबर. सो एक ग्रीन स्टार है, ब्लू वेव है, रेड क्रॉस, ब्लैक स्क्वायर, येलो सर्कल. ओके, सो ये सारे चीज़ें हैं. सो राघव प्लीज हैव अ लुक एट देम ऑल टुगेदर. प्रॉपरली आप देख लीजिए पहले इसको, ठीक है? गेट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. आप उसको प्रॉपरली पहले देख लीजिए, प्रॉपरली अच्छे से इसको देख लीजिए. ऑलराइट? Okay, now I just want you to close your eyes, and your audience can also close their eyes now. So, I would like all of you to now just close your eyes. Take a nice deep breath in from your nose. And when you're about to exhale, आपके spine से इसको नीचे इसको छोड़िए. Almost feel करिए कि you're letting go of whatever is holding you back. Just letting go of that energy completely down. उसको आप धरती के अंदर उसको जस्ट मर्ज कर लीजिए, उसे ख़त्म कर लीजिए. अगेन लेट्स डू इट अगेन. नाइस डीप ब्रेथ इन अगेन. When you're about to exhale, just slowly push it down from your spine and let it go. Well done. Now, हम एक एक लेयर आपके माइंड प्रोसेस से हटाएंगे. तो सबसे पहली बात, आपको whatever that you know about your name that is connected with your name, और आप उससे पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी जो आती है उसमें से, I would like you to remove all of that. यानी कि आपको लगता है पर्सनालिटी में आप, if you're funny, if you're entertaining, just remove, come out from that. अगर आपको लगता है आप सीरियस हो, उसको भी हटा दीजिए. आपको लगता है कि you are a person who is very open to things, very humble, very kind, उसे भी हटा दीजिए. And now you just become empty. Come back to being empty. And when you're doing this, drop yourself away. Almost आप अपने आप को ऐसा देखिए कि आपने एक स्टेप पीछे ले लिया है. By thinking and accepting of whatever that is only the way it should be. एक स्टेप पीछे ले लीजिए. अभी आपके traumas, we all have some or the other trauma in our lives.
So I like you to completely start feeling first कि आपको ज़्यादा से गुस्सा आता है या आप बहुत ज़्यादा मे बी हंसते हैं because you have got a lot of sorrows inside you, or maybe you have a lot of information that is gathered और बहुत टेंशन है लाइफ में because आपको ही सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है. अभी यहाँ से भी द बिगर पिक्चर्स जो भी हो रहा है ये एक रीज़न की वजह से हो रहा है. द रीज़न ऑफ वाई यू कम हियर. एक्सेप्ट इट एंड लेट्स टेक अनदर स्टेप बैक. कंप्लीटली टेक अनदर स्टेप बैक. एक अच्छे से सांस अंदर लीजिए वापस. एंड व्हेन यू आर अबाउट टू एक्सहेल, आपके जितने भी हैवीनेस डेंस एनर्जीज हैं उसको सारा just leave it out, push it out. अब I would like you to see yourself एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को देखिए. एक बच्चे को ना कोई चीज़ से गुस्सा होता है ना कोई खुशी. वो जैसे जहाँ पे उसे रखे वो उस तरह से हो जाता है. यानी कि is very acceptant. A child is very acceptant because the child doesn't know otherwise. So I would like you all to just think that you are in a space that is very happy, free, open, and very free-spirited. Now, I would like all of you to just completely get into an imaginative state. यानी कि यहाँ से मैं अभी आपको जो कुछ बोलूँगी आप उसको इमेजिन करिएगा. यानी कि जस्ट अपने मन में उसे इमेजिन करिए. चाहे वो आप बना के इमेजिन कर रहे हो या अपने आप चीज़ें आ रही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई वुड लाइक यू टू जस्ट डू हाउएवर थिंग्स आर कमिंग थ्रू. द रियल फॉर्म ऑफ इंट्यूशन कम्स थ्रू इमेजिनेशन. सो लेट्स ओपन आवर इमेजिनेशंस अप अगेन. नाउ आई वुड लाइक यू टू सी योरसेल्फ. अपने आप को एक कमरे में देखिए जो कंप्लीटली वाइट है, सफ़ेद है. ऐसे कि उसकी चेयर सामने एक चेयर पड़ा है और आप उस चेयर में बैठे हैं. एंड यू आर सिटिंग इन दैट चेयर वेयरिंग कंप्लीटली वाइट. यानी हर चीज़ आपके जहाँ भी आपको देख रहे हैं सारी चीज़ें सफ़ेद है वहाँ पे. एंड नाउ मैं उस रूम में एंटर कर रही हूँ एंड आई एम कमिंग with 2 bucket of colors. ये कलर्स उसी कलर्स से मिलती जुलती हैं जो मैंने अभी चूज़ की है फ्रॉम द जेनर कार्ड. अब वही कलर सामने बकेट में है. मैं आपको चाहती हूँ कि आप उसे इमेजिन करिए ये कलर कौन सा है. अब मैंने एक बकेट कलर आपके सिर के ऊपर सारा उड़ेल दिया है. आपको फील करना है कि वो कलर आपके ऊपर से नीचे तक जा रही है. कौन सी कलर इज़ कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टू यू. आपको हॉट फील हो रहा है या कोल्ड फील हो रहा है. व्हाट इज़ द फर्स्ट इंस्टेंट दैट यू आर फीलिंग एज द कलर इज़ मूविंग आउट. आई एम सेंडिंग द कलर टू यू टेलीपैथिकली. आप उसे कैच करिए कौन सा कलर है वो. होल्ड. जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में आया है उसे पकड़िए. होल्ड इट राइट देयर. मैंने दूसरा बकेट भी अभी उड़ेल दिया. दैट इज़ द सेम कलर. नाउ द कलर इज़ मोर एविडेंट. कौन सी जो कलर है जो फर्स्ट आपके दिमाग में आ रही है. एंड आई वुड लाइक यू टू पिक दैट इंफॉर्मेशन. डोंट मिक्स इट अप. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ. अब हम सीन चेंज कर रहे हैं. यू आर स्टेइंग इन अ क्लासरूम. क्लासरूम जैसे आप यू आर सिटिंग इन द फर्स्ट बेंच. एकदम फर्स्ट बेंच में आप बैठे हैं और एज अ टीचर ब्लैक बोर्ड के
और rather white board में I'm drawing that particular shape. Have a look at that particular shape. I am sending telepathically that shape right now to you. देखिए उस shape को. Whatever is coming the first thing in the mind, keep that information. मैंने उसी color से उसे draw किया है. देखिए उसे. Keep looking at it. Keep looking at it. हम scene change कर रहे हैं अभी. मैं आपके कानों में on your left ear मैं टेलीपैथिकली ज़ोर से चिल्ला के बोल रही हूँ कौन सा शेप है और कौन सा कलर है. It's going to match the one that I've chosen already for you. I'm saying it very loud in telepathically. सुनिए उसे. Pick it up. First thing in the head, pick that information up. Okay? अब मैं आपको एक मिरर के सामने खड़ा कर रही हूँ. आप अपने आप को एक मिरर के सामने देख रहे हैं. आपने वही कलर का शर्ट या ड्रेस पहना है. See yourself with that particular color right now. First thing जो आपके दिमाग में सबसे पहले आई है. Look at it. Feel it. Sense it. Know it. Okay? अब Raghav, I'd like you to open your eyes. Okay. आपके अंदर एक नहीं 2 चीजें चल रही थी. ठीक है? Yeah. अब आप या तो मुझे दोनों बता दीजिए, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. बट जो चीज़ सबसे स्ट्रांगली आपको आ रही थी दिमाग में, उसके बारे में पहले बताइए. Okay, I forgot the shape, but दो चीज में मैं कंफ्यूज हो रहा था. बट जो सबसे स्ट्रांगली आ रही थी वाज अ रेड सर्कल. ओके, वेल डन. ओके, और दूसरा क्या आ रहा था आपके दिमाग में? दूसरा आ रहा था, मतलब आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड व्हेन यू, आई थिंक यू वर ड्राइंग maybe waves on the blackboard. और और यही आ रहा था. ठीक है. ओके. अब जब मैं आपसे सबसे ये मेडिटेशन कर रही थी, मैंने ऑलरेडी साइड में ये कर दिया था इन ऑर्डर फॉर ऑल टू हैव अ लुक. ओके, तो अभी मैं बता रही हूँ कि मुझे मालूम था और मुझे पता था कि राघव के दिमाग में 2 चीज़ें चल रही थी. ओके, और उसमें से एक इज करेक्ट. ओके, तो आई शो. इट इज़ अ येलो सर्कल. तो सर्कल तो था मगर रेड मिला था राघव को. वाई? बिकॉज येलो एंड रेड बोथ आर वार्म कलर्स. So you picked up the right thing. So as a remote weird teacher or psychic teacher, मैं ये बोल सकती हूँ राघव, you done really well. Well done. Thank you. Okay. So circle तो आपको मिल गया, but colors में आपको red और yellow में थोड़ा अरक फरक हो रहा था, because बाकी के जो colors हैं, if you see, the only warm 2 colors we have is red and yellow. बाकी सारे cool colors हैं हमारे पास, which is blue, green and black. ये सारे cool colors हैं. So you picked up the color correct because the warm frequency के हिसाब से आपके पास warm colors थे. But shape के हिसाब से you picked up absolutely spot on. Okay. But why? So for me, why this card makes more sense? Because जब जब मैंने cards देखे थे, I was mostly attracted to this one only. Okay, the yellow circle. Yeah. Yes. I was attracted. So before the activity also, I was about to say, पर मैं तब बोला नहीं था. But उससे पहले भी मेरे मन में ही आ रहा था कि मतलब I was attracted to that. मतलब yellow, मतलब because super dogs also yellow. Yes. So, but yes. वो भी circle में ही है. Yeah. तो but what does this all mean जो हमने अभी किया? Okay. इसका मतलब क्या है? So ये एकदम इनिशियल एक्सरसाइज हम कराते हैं. हमारे जितने भी रिमोट व्यूअर्स हैं, साइकिक मतलब जो साइकिक एबिलिटी सीखना चाहते हैं, हम ये सबसे पहले ये चीज़ कराते हैं, बिकॉज ये सारे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पिक करता है.
एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन इज ESP, और ESP में ही सारा साइकिक, मतलब आपका जितना भी काम है जो साइकिक वर्क होता है ना, वो सारे ESP से ही होता है। आपने जब जो क्वेश्चन पूछा मुझे कि कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, तो ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से ही पिक होता है सारा चीज़। तो ये जेनर कार्ड्स इस तरह से बनाए गए हैं कि इट्स वेरी इंटेलिजेंटली मेड, कि यहाँ से सारे कलर्स तो हैं भी नहीं इसमें, मगर जितने भी कलर्स हैं आप सारे दूसरे कलर्स आप पिक कर पाओगे इफ़ यू स्टार्ट मास्टरिंग दिस। तो इनिशियल बिगिनर्स लेवल्स में यही पहले प्रैक्टिस किया जाता है। So now maybe your audience can write down on the comment if they got the yellow circle correct or not. Maybe that will be something that they will enjoy that the most. Okay. So अब जिसका कार्ड वही आया है उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, और जिनको ने कुछ और पिक करा था, जिनका कार्ड मैच नहीं कर रहा, what does that mean? Also before this, पता है the funny part was when you said कि look at the mirror ना in this activity, और funny part was I'm wearing a red today. I know. You know? तो मैं यही सोच रहा था कि वो कार्ड जो मैंने सोचा है वही कार्ड की, मतलब आज I'm wearing the t-shirt. So the funny part is when I was closing eyes, I was reading you. Okay? मुझे पता था कि you were confused in two. Yeah. Okay? और एक चीज भी है कि जैसे ही मैंने देखा कि what is Raghav seeing and I saw that you were wearing the red, तो मैंने बोला ये शायद confuse कर जाएगा red से. Okay? But okay. I'll tell you the reason why certain people will choose whatever they'll choose. Okay? सबसे पहली बात है कि say certain people are choosing the right information, यानी कि आपके psychic abilities open हैं, यानी कि you are बचपन से you guys were wanderers और dreamers थे, दिमाग कहीं और जाता था, मे बी शायद इतनी पढ़ाई में नहीं जाता होगा. ओके? और ऐसा भी नहीं है जो पढ़ाई में भी हैं वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. बट what is the reality? Reality is कि people are picking information exactly how their imagination is very very strong. और imagination जिसका भी बहुत strong होता है, intuition power उनकी हमेशा high होती है. ठीक है? जिन्होंने wrong उसको choose किया, इन ये ना सबसे पहली बात तो मैं अभी भी बता देती हूँ, आपके आधे से ज़्यादा और मे बी अ हैंडफुल ऑफ ऑडियंस, ओके, वुड बी इन्होंने 4 चीज़ें एक साथ चूज़ की, फिर ये कंफ्यूज हो गए, उसके बाद उनको लगा ये होगा वो होगा, ऐसा भी हो रहा होगा. ओके? ये ज़्यादा ना ओवर थिंकर्स हैं. इनके ना इमेजिनेशन है, बट ये इमेजिनेशन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं. दे डोंट गिव टू मच ऑफ अटेंशन टू इट एंड दे ट्राई एंड गेट इन टू लॉजिकल थिंग्स. एनीथिंग ऑन अ साइकिक लेवल आपको लॉजिक बाहर फेंक देना है. यू हैव टू थ्रो. और आई फील माइंड प्रोग्रामिंग ऐसे भी होती है, जो हो रहा है इन टुडेज वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली, कि आपको लॉजिकल ज़्यादा बनाया जाता है कि आप लॉजिक ही निकालो, हर चीज़ में लॉजिक ही निकालो. और यू कैन अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी इज़ अ ग्रे एरिया. It is neither white, it is not black. Okay? You have to have flexibility in understanding things. जब तक आपने acceptance अंदर से नहीं होगी, आप वहाँ से निकल नहीं सकते. So the people who got it wrong, I will say actually everybody is psychic. हर कोई psychic है. बट उसको obviously master करना होता है. काफ़ी लोग are get mastered very quickly because imagination उनकी बहुत strong होती है. तो imagination के जब वो लोग let flow करते हैं imagination से, they open up. Okay? And काफ़ी लोग जो imagination को बंद करके रखते हैं, वो ज़्यादा struggle करते हैं इस चीज़ पे. So that is the only difference between people who got it wrong, and if they want to open themselves up, I will say, as I always have shared in your podcast, is meditation is foundation towards learning to let go. So अगर आपने देखा कि मैंने meditation में सबसे पहले आपके layers throw किए. I threw out all the layers of what you think, what you believe. आपकी belief system is part of your ego. जैसे ही आप उसको throw करते हो, you come back into your neutral state, which is your true state. और आपका true state क्या है? आपका true state ये है कि आप हर चीज़ से connect कर सकते हो. जो चीज़ को आपको चाहिए, you can connect, you can manifest it. Okay? So. Right. इन psychic abilities को activate करने से होगा क्या life में? आज अगर you are into some sort of dilemma, okay, कि पता नहीं मुझे ये करना है, मुझे करना चाहिए कि नहीं, ये मेरे लाइफ के लिए सही होगा कि नहीं,
या वो बंदा मुझे मिला है, आई डोंट नो मैं उसको ट्रस्ट करूँ कि नहीं, या मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये डिसीजन लूँ बट आई एम नॉट रियली श्योर कि ये डिसीजन मेरे लिए सही होगा कि Makes नहीं. sense. Okay. सो आप ये सब क्वेश्चंस भी नहीं करोगे. और मे बी अनदर थिंग इज, काफ़ी लोग पंडित के साथ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है ना, तो यू विल वॉक थ्रू दैट विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. आप अपने आप से मतलब आप एक रहेगा कि एक स्ट्रांग सेंस रहेगा कि नहीं, मैं ये जो फील कर रहा हूँ ये एक्चुअल मेरी इंट्यूशन बोल रही है, यानी कि द हायर गाइडेंस इज टेलिंग मी दिस. This is so powerful, so powerful. And I think life में कुछ भी और कोई भी और कहीं पर भी है, it is all about the decisions you take. यस. चाहे रिलेशनशिप के हो, बिजनेस के हो, लाइफ के हो, चाहे कोई काम वाली बाई रखने के हो. वेरी ट्रू. सो एक डिसीजन लाइफ में पीस ला सकता है और एक डिसीजन खराब कर सकता है. सो इंट्यूटिवली यू बिकम स्ट्रॉन्गर. आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो, इंट्यूटिवली आपको कुछ फील हुआ हो एंड दैट जस्ट टर्न्ड आउट रियली रियली गुड और रियली बैड? कभी कुछ ऐसा जब आपने, होता नहीं है कई बार, हम, मुझे लगता है मेरे साथ तो कई बार होता है, करने के बाद लग रहा था नहीं करना चाहिए था, फिर लग रहा था नहीं करना चाहिए था पर कर लिया, फिर बाद में लगता है यार दिस वाज अ बैड डिसीजन. सो ऐसा हुआ है आपके साथ? So Raghav, now if you really ask me this question, ये तो मैं अभी मैं पीछे ही ले जा सकती हूँ आपको, which is to do with my childhood, of how I was, मैं क्या थी, मैं क्या करती थी, or even to do this, you know, there's an entire story behind it. So if you give me some time, some moment, I will share my information out to people. So let me just tell you one thing कि बचपन से I used to, आई वॉज, मतलब आप उसको साइकिक बोल लो या मीडियम बोल लो. मीडियम मतलब यू कैन स्पीक टू स्पिरिट्स, यू कैन सी स्पिरिट्स. ओके, तो मुझे चीज़ें दिखाई देती थी छोटे से व्हेन आई वाज यंग. और मेरी स्टोरी ये है कि मैं ये सारी चीज़ें बताती भी थी, ओपनली बोलती थी. मम्मी को बोलती थी, डैडी को बोलती थी, भाई को बोलती थी. एंड अनफॉर्चुनेटली ये सब बोलते थे ये स्टोरीज बनाती है, ये झूठ बोलती है, ये अटेंशन सीख करती है. तो इससे मुझे बहुत इशू, मतलब बहुत ये भी मिले, बैकस्लैश भी मिला कि हाँ ये झूठ बोल रही है या ये बना के चीज़ें स्टोरीज बता रही है. तो एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि आई completely let go. मैंने बोला कि चलो यार, I only have to get to listen to all of this. It's might as well let's leave it now. Let's not talk about it at all. Plus मैं छोटे से मैं dyslexic थी, जो मैं जब UK गई तब जाके मुझे पता चला कि I was dyslexic. यानी कि I was not very good in math. I was very average person, but मैं ड्राइंग, क्राफ्ट, आर्ट वगैरह में बहुत अच्छी थी. मतलब मैं एक्सेल करती थी. आई यूज्ड टू रैंक एंड आई यूज्ड टू ऑल्सो रैंक, यानी कि आई यूज्ड टू, मैं अपने स्कूल को ये करती थी. आई यूज्ड टू गो फॉर कॉम्पिटिशन्स एंड आई यूज्ड टू स्टैंड फॉर माई स्कूल दैट मैं ये स्कूल से आई हूँ, एंड आई यूज्ड टू बैंक अवार्ड्स एंड कम. सो प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे पेरेंट्स ये सोचने लगे यार ये पढ़ाई में नहीं है, ये सब चीज़ में ही नहीं, इसको इससे हटाओ, इसका दिमाग इससे निकाल के इसको इस चीज़ में डालो. एंड आई मीन अगर इंडियन ऑडियंस तो ये समझेगी बिकॉज यहाँ पे पढ़ाई को सबसे ज़्यादा ये अहमियत दी जाती है. ठीक है, यानी कि इफ़ योर चाइल्ड इज डूइंग समथिंग विच इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उस चीज़ को उतना नहीं दिया जाएगा. आई थिंक नाउ डेज पेरेंट्स हैव गॉट लिटिल बेटर. पहले के टाइम पे इट वॉज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर. तो वो टाइम पे जब मेरे पेरेंट्स ऐसे सब बोलते थे, आई वॉज लाइक यार जो चीज़ मुझे इतनी प्यारी लगती है वही चीज़ मेरे से छीन लिया. ठीक है, मैंने स्टडीज़ तो इतना अच्छा कुछ खास किया तो था नहीं, बट देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम माय फादर. माय फादर वाज अ केटरर, ओके, एंड वाज वेल नोन फॉर व्हाट ही डिड. तो खाना वगैरह बहुत अच्छा बना लेते थे मेरे डैडी. हमारे घर में तो कुछ और था, लाइक मेरी मम्मी वुड, हम बोलते थे डैडी आप कब खाना पकाओगे, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. ओके, बट एनीवेज देयर वाज अ पॉइंट, मेरी मम्मी भी मारेगी मुझे शील से कि मैं क्या खाना नहीं बनाती. मेरी मम्मी भी अच्छा खाना बनाती है बट मेरे डैडी अच्छे बनाते थे. ओके, बट एनीवेज माय मेन थिंग वाज कि अगर डैडी ये सब कर रहे हैं दैट इज़ क्रिएटिविटी तो है, ये थोड़ा डाल दो, ये थोड़ा डाल दो खाना. और मैं खाने में आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड. तो मैंने सोचा चलो इफ़ माई फादर कैन अर्न मनी फ्रॉम समथिंग लाइक दिस,
तो मुझे भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी खाना ही पकाती हूँ. तो राघव, बेसिकली आई डिड माई होटल मैनेजमेंट एंड मैंने शेफिंग की काम किया है वहाँ पे. हमेशा मैंने जब जब भी कोई डिसीजन लिया, मैंने हमेशा दिल से डिसीजन लिया, दिमाग से नहीं लिया. ओनली बिकॉज मे बी आई कैन टॉक इट कि शायद वो डिसलेक्सिया था, कि जिस वजह से आई वॉज ऑलवेज अ वेरी इंट्यूटिव, और रादर आई वुड से अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, कि मैं क्रिएटिविटी में ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ. तो क्रिएटिविटी दिल से आती है, दिमाग से नहीं आता. ओके, जो भी इंसान क्रिएटिविटी दिल से करता है वही आगे जाता है. जो दिमाग से करता है उसकी क्रिएटिविटी सिर्फ एक लिमिट तक ही आगे आ जा सकती है. तो एनीवेज, सो मैंने अपनी डिसीजन हमेशा इंट्यूशन के हिसाब से ही लिया, विच वॉज वॉट आई यूज्ड टू थिंक इज अबाउट क्रिएटिविटी. एनीवेज, वो एक चीज़ हो गई. फिर उसके बाद मुझे मास्टर्स करना था. अब culinary आर्ट्स यानी कि शेफिंग वर्क में वो टाइम पे, आई डोंट नो हाउ इट इज़ बैक इन इंडिया राइट नाउ, बट वो टाइम पे देयर वाज नथिंग टू डू मास्टर्स, उसके बियॉन्ड आना था नहीं. तो एक डिसीजन मैंने लिया कि मैं अब्रॉड जाऊंगी. और मैं छोटे से, मैं हमेशा मेरी मम्मी को बोलती थी मैं अब्रॉड जाने वाली हूँ. मेरी मम्मी बोलती है तेरे कितने पूरे जितने पूछते हैं कभी लाइफ में ये लोग अब्रॉड अब्रॉड का मुंह तक नहीं देखा, तू क्या जाएगी. और मैंने वो प्रूव रॉन्ग किया, बिकॉज आई बैंक्ड मेरिट्स इन ऑर्डर टू गो अब्रॉड सो दैट मुझे स्कॉलरशिप भी मिले, जो हालांकि मुझे मिली व्हेन आई वेंट इन टू द यूके. वहाँ जाके पता चला कि आई वॉज डिसलेक्सिक. अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ पे मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया. आई वॉज अ शेफ़. आई एम अ शेफ़ एक्चुअली. शेफ़ की मतलब पोजीशन कभी जाती नहीं है. सो आई एम स्टिल अ शेफ़ एक्चुअली. बट आई वांटेड टू डू माय ओन बिजनेस. मैंने बोला कि बिजनेस खून में है, मेरे डैडी करते हैं, सो व्हाई शुड आई डू इट. तो इवन आई वेंट अहेड एंड डिड माय ओन. मेरा वहाँ बाकायदा was a very successful business that I had, and that was about catering. So we had, parties, weddings, ye wo. So we were doing really well in that. Is point pe my father passed away, and when he passed away, I had already known a year before in my dream states, जहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिखाई दे गया था कि समथिंग वेरी मेजर इज गोइंग टू हैपन विथ माई डैड एंड ही इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू लिव. मेरे इंट्यूशन हमेशा ही मेरे साथ रहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज एन एस्पेक्ट कि मैंने उसको बंद करके रखा था, जस्ट बिकॉज लोग जब सुनते नहीं थे तो बट इट डजेंट मीन दैट मैंने अपने लिए बंद कर दिया था, मैं उसको सिर्फ बोलती नहीं थी. एनीवेज, 1 साल के बाद व्हेन माई फादर पास्ड अवे, इट वॉज अ ह्यूज थिंग इन माई फैमिली. हर चीज़ चेंज हो गई उसके बाद से. एंड देन वॉट हैपेंड वॉज आई कुड सी माई फादर वन ऑन वन. उसको बोलते हैं एपरेशन. एपरेशन में यू कुड सी स्पिरिट्स, द स्पिरिट्स कम टू यू, यू कैन कम्युनिकेट विद देम. कम्युनिकेशन कभी भी मुंह से नहीं होती है, कम्युनिकेशन टेलीपैथिकली होती है, जो एक्सरसाइज अभी हमने की. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस टू यू दैट देयर वॉज दिस awkward feeling कि आई एम फीलिंग दिस, इज इट इवन रियल. मेरे डैडी इतने ब्यूटिफुली मेरे पास आए एक पॉइंट पे जहाँ पे उन्होंने ही मुझे बताया कि योर वर्क इज़ टू डू इन दिस डायरेक्शन इन स्पिरिचुअलिटी. वो दिन था और आज है. ये मैंने मेरा जितना भी माई बिजनेस एंड एवरीथिंग, आई कम्प्लीटली गेव दैट अवे. मुझे एक क्वेश्चन हमेशा लोग ये पूछते हैं कि आपने उसे, यू गेव दैट अवे, वर यू नॉट स्कैर्ड कि वॉट एवर दैट यूर डूइंग वो अगर नहीं चला तो. मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग थी उस पॉइंट पे, वो रेजोनेंस बोलते हैं इसको. इतनी स्ट्रांग रेजोनेंस थी कि यही है और यही आगे है, देयर इज नथिंग एल्स. आई लेफ्ट द एंटायर बिजनेस, आई गेव दैट अवे कम्प्लीटली इन ऑर्डर टू स्टार्ट बैक फ्रॉम ज़ीरो. यानी कि सिर्फ मेडिटेशन करो, सिर्फ ट्राई एंड गो डीपर इनटू मेडिटेशन. मुझे अब ये भी नहीं पता था कि मैं शायद ये सब करूँगी, आई विल बिकम अ रिमोट व्यूअर और व्हाट नॉट. आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट एट दैट टाइम. मगर मुझे सिर्फ इतना पता था कि आई हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू हेल्प, इन ऑर्डर टू गिव. और तब मैंने, आई हैव स्पोकन टू यू इन माई अदर पॉडकास्ट ऑल्सो विथ यू दैट I used to have out of body experiences in my meditations. I used to receive information. I used to come back. मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है.
धीरे धीरे गेट्स खुलने लग गए अपने आप, वेयर I was being chosen, I was being invited to come as like to learn how to remote view. I came become a part of a very massive lineage that comes, CIA use करते हैं ऐसे remote viewers को, and so on so forth. So there was an entire lineage from there. And वहाँ जाके when you ask the question कि आपने अगर लाइफ में कोई डिसीजन लिया है दैट कम्प्लीटली केम दैट वाज अ राइट थिंग, कमिंग टू द यूके वाज अ राइट चॉइस. मैंने शायद उसको सोचा कि इट इज़ टू डू विद स्टडीज़, बट एक्चुअली इट वाज मोर टू डू विद माई पाथ टू बी अ हीलर, to work with, like be a therapist, work with a lot of people in order to help, enhance people's psychic abilities, and do remote viewing and help humanity through remote viewing. So I just wanted to share that, जिस तरह से भी मैंने decisions आगे लेते जाए, that अभी जाके मैं जानती हूँ उस चीज़ को, it was all through intuition. So intuitively क्या कोई ऐसी practices हैं जो कि कोई कर सकता है जिससे कि उसकी intuition improve हो सके? I think the main practice is to let go of the mind. यानी कि through the work, meditation क्या करता है? Meditation आपको अंदर inner work के बारे में ले जाता है. Like it takes you towards your shadows. आपके इश्यूज कहाँ हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, हर कोई बोलता है, राइट? आई थिंक इंडिया शुड नो दिस बेटर देन एनी अदर कंट्री, एंड दैट इज़ कि मेडिटेशन, ध्यान आपको सेंटर करती है. इट ब्रिंग्स यू बैक इन टू यू. ओके, एनीथिंग एल्स इज नॉइज. सो जब अगर आपको इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करनी हो, सबसे पहली बात तो इंट्यूशन इज जस्ट, आई मीन साइकिक एबिलिटीज इज जस्ट a surface level thing, to be honest. Okay, जब आप meditation करना शुरू करते हो तो intuition तो आती ही है. It is part of the given, So what I'm trying to say is आपका main focus should not be wanting to be psychic. आपका main focus should be learning to let go, learning to be more focused within you. अगर आपने ये किया और आपने meditation शुरू कर दिया, okay, विदाउट थिंकिंग हाँ मुझे मेडिटेशन में ऐसे सारे एक्सपीरियंस आएंगे, अगर आपके डीप जा रहे हैं मेडिटेशन और आप सही से मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस आएंगे ही आएंगे, विच इज़ विथ नो फैक्टर. ऐसा है ही नहीं कि नहीं होंगे. डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, सब्जेक्टिव है ये चीज़. ओके, काफ़ी के होंगे कि अरे मैंने ये देख लिया या वो देख लिया, काफ़ी के होंगे कि नहीं मुझे अंदर से बड़ी शांति फीलिंग हुई. ओके, अपने अपने चॉइसेस हैं और अपने अपने वेज हैं कि जिस तरह से लोग अंदर डीप जाते हैं. बट नाउ सेइंग दैट आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है. सो जब हम लोग सोलार प्लेक्सेस में मेडिटेट करते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रांग वेज टू इम्प्रूव साइकिक एबिलिटीज़, इंट्यूशन लेवल. तो आपको सडनली झटके से ऐसी चीज़ें पता चलती हैं कि आप सोच भी नहीं रहे थे उस बारे में, और सडनली आपको एक फीलिंग आ रही है कि ये क्या है. Those are called intuitions. Those are called, I mean, that is part of your psychic abilities. So that is one of the major things that you can start on from. So meditation जब आप कह रहे हो, do you refer this to as नाम जाप or? Naam Jap is, again, I think it's a very good question that you've asked. I think you're asking all the questions that my students ask me a lot. Mm-hmm. So Naam Jap is एक दिमाग रख के और उसको सिर्फ नाम जाप ही कर रहे हैं, नाम जाप ही कर रहे हैं, नाम जाप ही. आप अगर नाम जाप कर रहे हो तो अगर आपने भक्ति लाया आपने, ठीक है, अब आपने सरेंडर कर दिया. अगर लोग नाम जाप इसके लिए कर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए, तो आपका जो भी आप साधना कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो इतना शायद फल देगा बट इतना स्ट्रांगली फल नहीं देगा उस चीज़ के बारे में. बट जब आप सरेंडर करके आप नाम जाप कर रहे हो तो आप डीप जा रहे हो. काफ़ी लोग, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस व्हेन आई एम शेयरिंग दिस टू यू, कि नाम जाप में जब ऐसा भी एक पॉइंट आता है कि आप जपा कर रहे हो और जप करते 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 आप एक शॉर्ट समाधि में आ गए हो, ठीक है, कि आपका इफ़ यू हैव आपका रुद्राक्ष का माला है या आप माला में अगर जाप कर रहे हो तो आपका माला वो भी रुक जाएगा और आप भी थम जाओगे और आप एकदम शांत जगह पे पहुंच जाओगे. फिर सडनली आप वापस आओगे और वापस आपने नाम जाप किया. दैट इज़ द स्टेट.
यानी कि आपने मेडिटेशन किया वहाँ पे आप मेडिटेटिव स्टेट में चले गए, टोटल डीप में चले गए, ठीक है. बट मेडिटेशन इटसेल्फ इज़ वेरी डिफरेंट. यानी कि अभी तो गाइडेड मेडिटेशंस आ गई हैं, काफ़ी कुछ आ गया है इन ऑर्डर टू गेट योर माइंड ऑफ फ्रॉम अदर थिंग्स एंड गेट इनटू समथिंग एल्स, ठीक है. सो गाइडेड मेडिटेशन, देयर आर प्लेंटी ऑफ मेरा खुद का चैनल है जहाँ पे मैं अपने गाइडेड मेडिटेशंस डालती हूँ. सो दैट इज़ अनदर वे ऑल्सो जहाँ पे आप मेडिटेशंस कर सकते हो और डीप में जा सकते हो. मेडिटेशन इज़ ध्यान. ध्यान एंड नाम जाप इज़ टू डिफरेंट थिंग्स. सो आप जब ध्यान कर रहे हो ना, ध्यान आप what are you doing ध्यान for? आप अंदर जा रहे हो. The work is all inwards, not outwards. काफ़ी लोग बोलते हैं मैं यहाँ चला गया वहाँ. आप कहीं नहीं गए, आप अपने अंदर ही हो. अपने अंदर की यूनिवर्स में आप घुस चुके हो. दिस इज़ वेयर यू हैव गॉन. सो यानी कि थॉट्स नहीं होनी चाहिए वहाँ पे. नाम जाप में काफ़ी लोग थॉट्स लाते हैं. नहीं, दैट इज़ नॉट कॉल्ड मेडिटेशन देन. वो नाम जाप भी नहीं है इन दैट सेंस. ओके. बट जब हम लोग करते हैं, यू रिक्वायर टू गो कम्प्लीटली सरेंडर. आप या तो उस देवी या वो यू नो द गॉड और द गॉडेस्ट, उसमें आपने पूरा समर्पण कर लिया, या आप बैठे एंड यू जस्ट गॉन इनटू नथिंगनेस. दीज आर द टू वेज ऑफ वर्किंग विद मेडिटेशन इफ यू वांट टू. सो इंट्यूटिवली जो आप सोलर प्लेक्सिस के थ्रू मेडिटेशन की बात कर रहे हो, आप ये बता रहे हैं कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पर कोई माइंड में थॉट्स नहीं है और आप यू जस्ट यू, दैट्स इट. you're nothing in a way. You're absolutely everything or you're nothing. आप उसमें चले जाइए. बट थॉट्स एकदम से तो जाएंगी नहीं. आप आंखें बंद करोगे वो सब कुछ याद आएगा जो. Yeah. So how do you get into a meditation like this? It's a process by itself. Okay. पहले काफ़ी लोग ये बोलते हैं मैं रोज़ मेडिटेट करता हूँ. I get clients. Okay. मेरे सारे वेस्टर्न क्लाइंट्स हैं. So they say that I meditate every day. तो मैं बोलती हूँ well done. How long do you meditate? I do 10 minutes meditation every day. Okay. 10 minutes meditation is not called meditation to start with. आपको 10 to 15 minutes या sometimes even more than that इतना ही लगता है in order to remove the noise around you. जब तक आप observant नहीं हो जाते अपने thoughts में, तब तक आप meditative नहीं हो. यानी कि if say you are say मैं ध्यान में बैठी हूँ, अब मुझे दिखाई दे रहा है या तो मुझे क्या करना है या क्या हुआ है. आई कैन नॉट बी इन माई प्रेजेंट स्टेट. ठीक है. जब तक आप प्रेजेंट स्टेट में ना आए तब तक मेडिटेशन इज नॉट कॉल्ड मेडिटेशन. सो स्टार्टिंग में नॉइज तो होगा ही, बिकॉज दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स आर बीन क्रिएटेड. हम या तो यहाँ पे हैं, मतलब वी आर ईदर इन द फ्यूचर ईदर इन द पास्ट. प्रेजेंट मोमेंट में कोई रहता ही नहीं है. ओके. So in order to bring yourself in the present moment, that is the reason we use the prana, when you are breathing, the breath. So हम breath work से जब breath से connect करते हैं, we bring ourselves back into the present state, back into ourselves. वहाँ से meditation शुरू होती है. ठीक है. कोई basic process बता सकते हो? Somebody who's starting today, जो अपनी intuition build करना चाहता है. Right. Okay. So I think the first thing is make a basic practice for yourself to sit on a particular time for meditation, either morning or night before going to bed. ठीक है. मॉर्निंग में इफ वो बंदा अगर ये बंदा या बंदी इज बीन वेरी लाइक मतलब ओवर थिंकिंग माइंड में, मुझे आज ये करना है, मेरा कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ये करना है, तो बेटर नॉट डू इट, बिकॉज आपका दिमाग सिर्फ उसी चीज़ में जाएगा. ठीक है. डू इट इन द नाइट. और अगर आप ऐसे बंदे हो कि नाइट को मैं तो सो ही जाता हूँ, तो make sure that you at least try to do the meditations at least 2 or 3 hours before going to bed. Okay? इसमें क्या होता है, and I feel like doing meditations in the night would be better, but I know Brahma Muhurat हर कोई बात करता है कि Brahma Muhurat is better, but consistency is the main factor. लोग शुरू तो कर देते हैं but consistent नहीं रहते हैं, तो वहीं पे टूट जाता है. अब मुझे मेरी बात करो तो when I started my meditations in the night. It was only in the night. I was not doing it in the morning because my morning was very hectic.
ओके, और राधा आई वॉज टू बिजी अराउंड इन माई मॉर्निंग टाइम्स. सो इसके लिए मैंने राइट में शुरू किया और मैं ईजिली 1 से 2 घंटे देती थी. सो जस्ट टू स्टार्ट विथ इज, इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट विथ से एक नाम ले लो, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो या कुछ भी हो. You take it, okay, with every breath that you're breathing and bringing that energy in. आप जब breath कर रहे हो तो आप उसको नाम जब भी बोल सकते हो, but I'm not actually using a mala at this point. ठीक है, I'm just getting into that state. और मैंने जब breath लिया, I'm taking that name or that thought in me and then I'm letting it go. तो मैंने अपने breath से connect करना शुरू कर दिया. Start at least this way. The people who have a busy mind, यानी कि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, use a guided meditation. कोई भी guided meditation. हमने अभी just guided meditation की, जहाँ पे I was telling you to let go. वैसे बहुत सारे आपको guided meditations मिल जाएंगे. Take at least a guided meditation that is for 45 minutes, not lesser than that. क्योंकि उसके पहले अगर आपने end कर दिया, that means you were, खास करके अराउंड 15-20 मिनट्स तो आपको सिर्फ अपना माइंड निकालने में चला गया है. सो यू कैन गेट इनटू गाइडेड मेडिटेशंस. अभी रिसेंटली मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुन रहा था परमहंसा रामकृष्ण की. सो उसमें उस कहानी में ये था कि परमहंसा रामकृष्ण को जिस मंदिर का पुजारी बनाया गया, तो अब वो उनका तरीका बहुत ही डिफरेंट था मंदिर को चलाने का. रात को मंदिर बंद होते हैं, वो रात को मंदिर खोल देते थे. सुबह लोग आते हैं मंदिर में, वो बंद कर देते थे. कई दिन मंदिर भी नहीं खोलते थे. सो जो उनकी कमेटी थी वो रामकृष्ण जी के पास आती है, बोलती है क्या तरीका है मंदिर चलाने का. तो फिर उन्होंने बोला कि अगर जिस दिन मेरा मन नहीं कर रहा पूजा करने का, उस दिन मैं नहीं करूंगा. जिस दिन करेगा तो समय नहीं देखूंगा कि सुबह हो रही है या रात हो रही है. और कई बार पूरी रात को वो पूजा कर ही रहे हैं, कई दिनों तक पूजा चल रही है. तो मुझे इतना पावरफुल थॉट लगा ये कि अगर हो ही नहीं रहा तो कर ही क्यों रहे हैं. अब जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, एक है मैंने पढ़ दी, उसमें अगर मैं उसको महसूस ही नहीं कर रहा, उसको फील या इंटेंशन से कर ही नहीं रहा, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग समथिंग. इसका मतलब तो ये है कि मैं इजिप्शियन लैंग्वेज में कुछ पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ दिया. पढ़ने से अगर हो रहा होता तो मतलब why would anybody want, even God would want you to read something for nothing. True. So even for meditation, जैसे you also said this, I think अभी कि if your mind is too much busy, what's the point of doing meditation. मतलब पहले वो ठहराव तो खुद के अंदर लाना ही पड़ेगा, वो acceptance of that situation, of the thought, and ये भी acceptance कि I want to get out of it. अगर हम इसको accept ही नहीं कर रहे, I don't think we are going anywhere. वो बस सुबह की वो हनुमान चालीसा है जो कि आपने हनुमान जी को बुला तो लिया पर साथ में महसूस किसी को नहीं किया. So it's just like chanting something that you don't feel like doing it. True. What do you think about it? Oh my God, this is so awesome. Like, I'm so happy that you opened up to this. तो it is very true. आप कोई चीज़ forcibly कभी नहीं कर सकोगे. यानी कि आपका अगर गोल है कोई चीज़ और आप उसको फोर्स कर रहे हैं उस चीज़ को लाने के लिए, just because maybe there are 100 people who are doing it in front of you. Looks fancy. तो हाँ, तो चलो हम भी we'll also get inside it and we'll also try it. Okay, you'll never get into it. रामकृष्ण परमहंस ही उनके अंदर भक्ति थी. वो भक्ति जब भी जागृत होती थी, वो he used to completely shower himself into it. Right. Okay. Now similarly, if I'm saying कि meditation, okay, meditation का एक तो है that you try and push yourself. Okay, वो एक है because अगर आपने आज छोड़ दिया उसको तो फिर कल भी ऐसा करेगा, चलो छोड़ो आज भी नहीं. तो इस तरह से it will completely go. जिस तरह से हम खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, there has to be some dedication that has to put in meditation. But आपको at least 15 to 20 minutes तो देना ही पड़ेगा to let go of the noise inside the head. वो बहुत ज़रूरी है. But when it comes to कोई भी चीज़ अगर हमें कुछ हासिल करनी है ना,
तो उसके लिए ना एक जोश चाहिए, एक जज्बा चाहिए अंदर in order to get there. अब my mother is obviously over here in the studio, but as you will understand that even to talk to my mother about it, कि मेरे अंदर एक चीज़ थी and that was the जज्बा that मैं इसको छोड़ूंगी नहीं. शायद आप ये भी बोल सकते हो कि when I was, जब भी मेडिटेट करती हूँ मेरे डैडी को देखती थी, तो वो एक था, शायद वो एक लालच में करती थी कि मैं अपने डैडी से मिलूं. तो एक था मेरे अंदर दैट यू नो दैट दिस इज द रीजन, और आई फील लाइक इट वाज डिवाइन ग्रेस कि दैट्स हाउ इट वाज मेंट टू बी फॉर मी. अगर आपने कोई एक चीज़ में एक अंदर से कोई चीज़ पे प्यार ले आए, ओके, और वो प्यार ही आपको अगर आगे बढ़ा रहा है, दैट विल हेल्प यू. ओके, सो रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जो आपने बात की, आई अंडरस्टैंड दैट वाज माँ के बारे में, माँ काली के बारे में उनका एक अलग ही प्यार था उनका. एंड ही डिडंट केयर. उनको आधे लोग तो पागल भी बोलते थे वो टाइम पे, कि यू नो इनको ये तो पता नहीं ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है. बट द रियलिटी इज कि जब तक वो प्यार क्या है, वो प्यार भक्ति है. अगर आपने प्यार से कोई चीज को अगर जोड़ लिया तो आप डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ो. एंड उस प्यार में कुछ मांगना नहीं है. इन वन ऑफ द एपिसोड्स किसी ने बोला कि आपको तो माँ काली के दर्शन होते हैं साक्षात. एंड एवरीबडी नोस परमहंस रामकृष्ण हैड कैंसर. तो कई लोगों ने बोला कि आपके सामने माँ है, आप मांग क्यों नहीं लेते? कह रहे माँ से ये मांगो. आई वॉज टोटली अमेज्ड टू थिंक कि मतलब हम भगवान को, अब शायद आज भगवान हमारे सामने आ जाए तो शायद भगवान से हम ये मांगे कि कुछ मिल जाए, या मे बी कुछ मेरी कोई ड्रीम पूरा हो जाए. बट भगवान से भगवान को मांगना, ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है. परमहंस रामकृष्ण नेवर आस्क्ड गॉड कि मुझे ठीक कर दो. He could have asked it, और मे बी हो भी जाता. बट आई थिंक द साइकिल ऑफ कर्मा ऑलवेज स्टेज विद यू. और जो आप सफर भी कर रहे हो इस लाइफ में, आपको वो इररिस्पेक्टिव, चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए, आपको वो पूर्ण करना ही है. यू हैव टू कंप्लीट इट. It's very true. अब आपने इस बारे में बात की. I want to touch base on something. This is very important for healers and others to know. कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि you know how come रामकृष्ण परमहंस would get cancer. तो he was the बहुत महान आदमी थे. Like he was a saint. He was an amazing saint. तो उनको कैसे कैंसर? भक्ति का फायदा क्या हुआ? Exactly. ठीक है. बट अगर मैं ये बोलूँ कि उनके काफ़ी डिसाइपल्स थे, एंड कर्मा एक ऐसी चीज़ है कि आप वो कहीं से बुझा नहीं सकते. हम वो यू कैन मूव द कर्मा. अगर चाहते हैं कि इसको नहीं लगे तो वो एक गुरु अपने आप में ले सकता है. राइट. ठीक है. एंड व्हाट आई नो और हाउ मच आई हैव अंडरस्टूड बाय नाउ इज lot of higher gurus have really taken a lot of karma from others. Okay. Sai Baba has been one of the. Sai Baba को throat cancer हुआ. उस टाइम पे उसे जानते भी नहीं थे. His very good disciple had that issue. And Sai Baba, ये तो I think Sai Baba की मूवी भी आई थी जहाँ पे it has been completely shown कि क्या हुआ था. So he took his thing in him. Karma is something that is, you cannot delete it. You can pass it down, but आप उसको delete नहीं कर सकते. So काफ़ी जो healers होते हैं ना, बोलते हैं कि हाँ मैं इसे heal कर रहा हूँ, मैं इसको healing कर रहा हूँ, या मैं definitely heal कर. अगर it is for the highest good, then it will happen. अगर if it is not for the highest good, do not touch that. Okay? So what I teach my students is that I tell them that always put the intention if it is for the highest good. Okay? Don't take it up in your hands. हम भगवान नहीं है. हमारे अंदर से, और when I say भगवान नहीं है, I'm literally giving you like a statement saying that there are things that will happen. Okay? And we are blind enough not to see it because हम उतना ही दिख रहे हैं जितना हमको दिख पा रहा है. Correct. Right? We don't know the entire information as of yet. So we have to realize that when we are receiving information or when we are doing any sort of healing, सबसे पहली बात है कि healing intention से करो कि if this is for the person's highest good, then so it is. काफ़ी सारे healers, they fall ill because of this, because उन्होंने forcefully वो healing दी है and they have taken the other person's karma into their bodies. So we have to also realize this aspect of things. Right. Even अभी के टाइम पे प्रेमानंद जी महाराज हैं,
so he has his Yes. both kidneys failed. Yes. But आज कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं जो देना चाहते हैं, but he does not take it. No. He says that नहीं, जब अगर this is what God wants me to go through, तो उसको उस कार्मिक साइकिल को. बट अब एक बात बताओ, जैसे मुझे चोट लगे तो मुझे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए? मेडिसिन आप ले सकते हो बिकॉज आप ये खुद से कर रहे हो. सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेडिसिन मत लो. हाँ. काफी लोग तो वो भी नहीं करते ना. काफी लोग दे अलाउ देमसेल्व्स टू हील ऑर्गेनिकली. राइट. तो या तो काढ़ा पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. बट यू हैव टू रिमेंबर इफ इट इज समथिंग मेजर और किसी को कोई चीज़ को फोर्स किया जा रहा है तो वो फोर्सिंग शुड नॉट बी द थिंग. जैसे आई टेल यू से किसी को कैंसर ही हुआ है. लेट्स पुट इट कैंसर ओनली. किसी को अगर कैंसर हुआ है एंड अगर उस इन बंदे को अगर कैंसर हुआ है एंड 100 चीज़ें कर रहा है बट वो कैंसर कोई हिसाब से हील नहीं कर रही, यानी कि दैट पर्सन हैज़ कम एंड दैट इज़ हाउ इट्स मेंट टू बी फॉर दैट पर्सन. ये सिंपल सी चीज़ है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. अगर कोई चीज़ अगर कर सकती थी, यानी आपके पास 100 डिफरेंट आपके ऑप्शंस थे, आपने सारे ऑप्शंस कर लिए और कुछ नहीं हुआ, तो दैट मीन्स दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रारब्ध ओनली इन ऑर्डर फॉर दैट पर्सन टू गो थ्रू, इन ऑर्डर टू फॉर द पर्सन टू मूव. ओके, यानी कि सम पास्ट लाइफ कर्मास होंगे जहाँ पे द पर्सन, यानी कि वो अपने बंधन जो है ना कर्मा की, वो भी तो तोड़ रहा है बाय हैविंग कैंसर. आई नो इट साउंड स्ट्रेंज, बट आपको सोचना भी चाहिए इस बारे में कि क्या मैं कुछ तोड़ रहा हूँ इस चीज़ के लिए. काफ़ी लोगों के हाथ में कभी पैसे नहीं आते. मे बी इन अनदर लाइफ दे हैव बीन ऑलवेज टेकन अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अदर्स और अपने लिए खर्च किया होगा. ओके, इसके लिए आज उनके पैसे उनके हाथ में कभी आते नहीं, उनके हमेशा ही चले जाते हैं या कुछ ना कुछ होता ही रहता है. तो इट इज़ भरपाई हो रही है यहाँ पे एज इन कर्मा. So we have to realize that there are certain things that is how it is meant to be. And अगर changes हो सकते हैं और timelines हम change कर सकते हैं, तो अगर वो highest good के लिए है तो वो change होगा, definitely change होगा. And we have done these kind of things. So हमने ये भी किया है कि very recently I had a healing done for a dog. Okay? उसके इतनी हालत बुरी थी उस डॉग की कि मतलब वेट ने भी बोल दिया था कि ही इज़ वेरी ओल्ड, हम इसे एनेस्थेशिया भी नहीं दे सकते हैं. अभी इसका जो इशू है, इसको जस्ट एक मतलब इंजेक्शन दे के पुट हिम अंडर. तो ईजी है ना वेट के लिए कि हाँ पुट हिम अंडर, बोलना बहुत आसान है. बट जो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको बहुत ख़राब लगेगा इस बारे में. एंड द मेन थिंग वॉज कि अभी हमने बोला कि इफ़ इट इज़ फॉर द हाइएस्ट गुड, लेट्स गिव दिस एनर्जी आउट. तो हमारे स्टूडेंट्स और मैं, हम सब मिल के हमने वो डॉग को हीलिंग दी. विद इन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ द डॉग स्टार्टेड वॉकिंग. अब सिमिलरली हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि हमने कितना ही हीलिंग ना दे दिया, द डॉग कुडंट मेक इट एंड हैड टू पास अवे. So that's the karma जो कि एग्जैक्टली. अगर हाईएस्ट गुड के लिए अगर हम करेंगे और वील पुट इट आउट देयर कि अगर इट इज़ मेंट टू शिफ्ट, तो लेट्स जस्ट शिफ्ट दिस. आई थिंक इसका बेस वापस वहीं पे आ रहा है कि आप अगर अपनी मेडिटेशन के थ्रू खुद को इंट्यूटिवली इतना स्ट्रांग बनाएंगे, सो क्लैरिटी से यू विल बी एबल टू मेक इट आउट. क्या चीज़ कितनी सही है, और आपको खुद फील होगा कि अब दिस इज द टाइम. जैसे जो योगी होते थे वो बता देते थे कि मतलब एक आई थिंक ओशो ने भी बता दिया था कि मैं इस दिन मरने वाला हूँ, एंड डेट दे दी थी, एंड वही मतलब समाधि के बाद. सो आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे, मतलब इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे योगी रहे हैं जो कि बता ही देते थे कि मतलब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ. अवन परमहंस योगानंदा जी का भी ऐसा ही था. And ऐसा मैंने पढ़ा था कि उनके डेथ के बाद उनकी बॉडी रखी थी और वो खराब भी नहीं हो रही थी, और ओपन पे रखी थी. और ये तो जितने वहाँ पे लोग आए थे उन्होंने खुद देखा था कि जो उनकी बॉडी थी, जैसे होता है ना अगर आप फ्रीजर में रखी जाती है बॉडी को, अगर नहीं रखते तो बॉडी मतलब डिकम्पोज होती है. पर परमहंस योगानंदा जी की बॉडी स्टेड एज इट इज फॉर डेज. तो ये सारे गुरुज के ऐसे ही हैं, द हायर मास्टर्स, ये सारे, बिकॉज इनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है ना, वो निकलने में भी काफी टाइम लगती है, बिकॉज इतनी ऊर्जा उनके अंदर. सो इट टेक्स टाइम फॉर द पर्सन टू. तो बॉडी ऐसे कि बॉडी ठंडी भी नहीं रहती है, इट्स वार्म फॉर क्वाइट लॉन्ग,
और मतलब बोलते हैं ना कि कोई भी जो स्मेल आती है जो डेड बॉडीज़ में नॉर्मली, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं से कोई डिकम्पोज भी नहीं हो रहा, यानी द ऑर्गन्स आर इंटैक्ट एंड एवरीथिंग इज स्टिल फाइन. एंड ये सिर्फ बड़े बड़े योगीज, मंक्स, एग्जैक्टली सेम चीज़, उनकी बॉडी डिटोरिएट ही नहीं होती है. कितने सारे ऐसे मंक्स हैं अभी भी, आई डोंट नो देयर नेम्स दो, एंड दैट जस्ट बी माई इग्नोरेंस एक्चुअली. बट माई मेन थिंग इज़ कि मैंने मंक्स को भी ऐसे देखा है जहाँ पे उनको ऐसे लिटरली ग्लास के अंदर रखे हैं एंड दे आर स्टिल इंटैक्ट, दे आर स्टिल इंटैक्ट. सो दे आर हायर मंक्स. This also proves one more thing psychologically and scientifically as well कि जो मतलब somebody who's defying the laws of nature, उसके मन में अगर कोई अभी कोई परेशान भी है, अगर वो मन से ही परेशान होगा, सो वो मन से, माइंड से कितना क्लियर होगा. जो बॉडी ऐसा बिहेव कर रही है तो माइंडफुल कितना होगा वो व्यक्ति कि उसकी लाइफ में चाहे कुछ भी सिचुएशन भी आती होगी, स्टिल दैट पर्सन वुड बी एबल टू go with life. But that's quite interesting.